नमस्कार, आदाब, वंदे भारत के साथ मैं सूरज दाभेकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वंस अगेन वेलकम टू दिस सेमिनार ऑन वॉर्स देन एंड नाउ ऑर्गेनाइज्ड बाय फोरम फॉर अवेयरनेस नेशनल सिक्योरिटी बड़ौदा चैप्टर इन एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स वडोदरा लोकल सेंटर। जब आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने गांडीव का त्याग किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे पार्थ, उठो और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करो। आज भी समय वैसा ही है। मैदान बदले हैं, युद्ध के रूप बदले हैं, पर युद्ध अब भी जारी है। कभी सीमाओं पर, कभी सूचनाओं में, कभी सोच में, कभी शस्त्रों से नहीं, सूचना, रणनीति और विचारों के बल पर। इन्हीं मूल्यों और आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आज फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फैंस इन एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ने आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया है। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस टू काइंडली प्रोसीड फॉर द लैंप लाइटनिंग सेरेमनी। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर आधार मंडोत, program co-convener, and Dr. Mr. Prashant Bhatt also joined for lamp lighting ceremony. Thank you all of you. Now I will officially welcome all the dignitaries on the dais. First, I would request Dr. Sunil Kahar, Program Convener and Assistant Professor in Metallurgical and Materials Engineering Department of MS University Baroda, to kindly welcome our Chief Guest, Dr. Jaiprakash Soni, President BJP Vadodara City and former Deputy Registrar, Central University, with a natural plant. Welcome. धन्यवाद सर. I would now request Dr. Adhar Mandot sir, Program Co-Convener and Assistant Professor in Department of Textile Engineering, MS University of Baroda, to kindly welcome our keynote speaker, Shri Dinesh Patel ji, Air Warrior and President Purva Sainik Seva Parishad Vadodara. Thank you, sir. I would request Mr. Prashant Bhatt, Program Co-Convener, Fans Baroda Chapter, to kindly welcome Dr. Satish Kumar K. Joshi, Chairman, the Institute of Engineers, Vadodara Local Center. Welcome, sir. I would request Dr. Anshul Upadhyay, Program Co-Convener, Fans Baroda Chapter, to kindly welcome Dr. Hireni Mankodi, Honorable Secretary, the Institute of Engineers, Vadodara Local Center. I would request Mr. Krunal Patel,
FANS Baroda chapter to kindly welcome our program convener Dr. Sunil Kahar. Please have a big round of applause. I would also request Dr. Adhar Mandor, program co-convener, to kindly welcome Dr. Anshul Upadhyay, FANS Baroda chapter. Thank you, all of you. So now we'll proceed further. First, I would request Dr. Satish Kumar K. Joshi, Chairman, the Institute of Engineers, Vadodara Local Center, to kindly deliver the welcome address. Good evening, everybody. I will not take his formal welcome is over. I welcome the chief guest of this keynote speaker, Dr. Jaiprakash Soni, the keynote speaker, Dr. Dilip Patel, and the guest. Now, before starting, if you look at this forum for awareness and safety, now we are sitting here. First of all, safety and security, I will give few guidelines, which is never happens, but it is always mandatory to say. There are two gates to exit. One is when you turn left back, one is on left, another is on right. When you, if in case of an emergency, exit from whichever gate you exit, move towards if you are exiting from left gate, move towards the left and vacate the building. Similarly, if you are moving from right, move from right and vacate the building. Thank you very much. I will request my secretary to inform about IEI. Thank you. Dhanyavad, sir. So now I would request Dr. Sunil Kahar, program convener of FANS Baroda chapter, to kindly deliver address about this seminar. Okay. Sorry for delay. I would request Dr. Hireni Mankodi to kindly deliver address. Thank you. Good evening, everyone. Behalf of Institute of Engineers, Vadodara chapter, I welcome you all, and I find that today's topic is really relevant in present scenario, and for that we have a eminent speaker with us. Now, as you are here, it's my duty to tell you something regarding to what the Institute of Engineer is. So the Institute of Engineer is the largest multidisciplinary profession body that encompasses of the 15 engineering disciplines and having a membership around 3 lakhs. It established in 1920 and its headquarters at the Kolkata. In 1935, it's incorporated by the Royal Charter and remaining only professional body in India which has been accorded in the honor. Today it's the largest professional excellent body, and it also have a presence in the global. So it's operating around 124 center across the country and 6 overseas chapter. So along with this, beside of this, it having a bilateral agreement with the 31 international bodies and memberships of the another 8 international bodies of the developed national across the globe. And here the Institute of Engineers is always collaborating and helping the people from industry, institutes, and any who need the support and guidance in any of the engineering branch.
and it's collaborated all with the Springer regular publication, which is peer reviewed and having a number of series which covering the 15 engineering discipline. So this is regarding to IEI. I all of you once again welcome you for the talk. Thank you so much, ma'am. So now I would request Dr. Sunil Kahar, Program Convener, Science Baroda Chapter, to kindly deliver the welcome address and also deliver about the seminar and this event. नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बधाने ऊँग गुड़ी है। So we are here. You can see the title, Forum for Awareness on National Security, and the Institute of Engineers, Vadodara local chapter. We are organizing the seminar on war, then and now. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, जो वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विविध जवाबदारी निभाते हुए महानगर कार्यवाह भी थे, विभाग शारीरिक प्रमुख भी थे, साधना प्रकाशन का भी काम किया है, ऐसे काफ़ी कुछ काम किया है जो आने वाले समय में उनका परिचय विस्तृत में होगा। ऐसे हमारे माननीय डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी, कार्यक्रम में जिनका हमको मार्गदर्शन जो ये टॉपिक पे मिलने वाला है, ऐसे श्री दिनेश भाई, ही इज़ एयर वॉरियर, और जो 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में उनका कंट्रीब्यूशन था, और ही इज़ ऑल्सो द पूर्व सैनिक परिषद के अध्यक्ष। डॉक्टर सतीश कुमार जोशी जी, जो अध्यक्ष है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया वडोदरा चैप्टर के, और पूर्व में ही ऑल्सो द हेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। Dr. Hirani Mankodi madam, she is a secretary of this Institute of Engineers and also the associate professor in textile engineering department. कार्यक्रम में मेरे सह संयोजक डॉक्टर आधार मांडोट, डॉक्टर अंशुल पदे मैडम, प्रधान जी। कार्यक्रम में आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में उपस्थित हमारे पूर्व सैनिक परिषद के हमारे एक्स आर्मी मैन, हम सभी की तरफ से आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच के जो भी विराजमान हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में करीबन 160 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, विविध सामाजिक संगठन, इंडस्ट्रीज़, पूर्व सैनिक परिषद और काफ़ी अग्रणी अन्य संस्था है संघ की, जैसे विज्ञान भारती है, ऐसे सभी संगठन से भी उपस्थित है। आज का जो विषय है उसमें ज़्यादा विषय में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात अवश्य रखूंगा। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर का तो आपको परिचय हो गया, लेकिन फेंस फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, फेंस की स्थापना 17 सितंबर 2014 के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी ने पूर्व सैनिक अधिकारी, काफ़ी IAS ऑफिसर सबको लेके इस मंच की स्थापना की थी। माननीय इंद्रेश कुमार जी बहुत स्तर पे काम कर रहे हैं। एक उनका एक इनिशिएटिव है जिसमें हम सब लोग कार्य करते हैं। ये जो मंच है
ये राष्ट्र भावना को जागरूक करना, लेकिन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इस कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ बताऊं उसके पहले मंच के क्या क्या उद्देश्य है। मेन तो अगर आप लोगो अगर देखो उसमें 4 शब्द है: सुरक्षा, विकास, जागृति और एकता। ये 4 मुख्य पिलर पे हमारा फैंस कार्यरत है। अलग अलग प्रकार की जवाबदारी है। मुख्यत्वे लोगों में हम अगर ये सोचते हैं कि भाई सीमा सुरक्षा तो आर्मी उनका काम है, हम सब लोगों का क्या काम, हम आराम से सो सकते हैं। अभी कुछ समय पहले अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे जो आर्मी की टीम है, तीनों विंग्स ने, और सभी को पता है 3 दिन में पाकिस्तान के हमने छक्के छुड़ा दिए और घुटनों पे ला दिया था। उस समय हम तो सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन आज का जो समय है हम सोचते हैं कि हम क्या देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि काफ़ी बार अभी हम जैसे भी कॉल करते हैं तो कॉलर ट्यून आ जाती है। सभी को कॉलर ट्यून क्यों आ रहे हैं? अवेयर कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है, ऐसे काफ़ी कुछ है। तो ज़्यादातर यूथ है, इंटेलेक्चुअल है, साथ साथ में नॉर्मल लोग भी मोबाइल, स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हैं। तो देश में अलग अलग प्रकार के जो भी विषय है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ हम देखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में टेररिस्ट एक्टिविटी है, माओइज्म की एक्टिविटीज है, नक्सलवाद है। इंटरनली हमारे देश को सीमा सुरक्षा के साथ में इंटरनली भी काफ़ी कुछ समस्या है। तो इस सब समस्या में हम किस तरह सरकार का, हमारे इसमें एक इंटेलेक्चुअल फोरम होता है जिसमें इंटेलेक्चुअल टीम इस पर अध्ययन करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि फेसबुक पे अगर कोई एक राष्ट्रभक्ति या किसी ने अच्छा कुछ पोस्ट किया है, उसके अगेंस्ट में लेफ्टिस्ट लोग का इमीडिएटली पोस्ट आ जाती है। वो सिंक्रोनाइज तरीके से इस काम में लगे पड़ते हैं। यूथ है, ज़्यादातर रील्स देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, पर आप देखना कभी भी कुछ देश विरोधी कुछ बात होती है तो उसके सपोर्ट में लेफ्टिस्ट लोग निकल पड़ते हैं, और एक लेफ्टिस्ट की कमेंट पे 4 लोग ट्वीट भी करते हैं। तो ये सब चीज़ हम सबको सोचनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई हम लाइक कर दो, फेसबुक में अच्छा है नहीं, उस पर रिस्पॉन्ड करना है, और उसको प्रशिक्षण का जो काम है वो फैंस करता है। ऐसा तो बहुत कुछ उद्देश्य है, लेकिन इतना मैं ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन फैंस का मुख्य जो हमारा है कि सभी समाज, हम जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश से ऊपर उठ के, हमारे पूर्वज सभी एक ही थे। लिंग और भौगोलिक विस्तार में हम अलग अलग प्रकार के, हमारी देश में विभिन्न भाषा है, लेकिन विभिन्नता में एकता, ये हमारे देश का बहुत बड़ा मजबूत आधार है। हम सब सोचते हैं कि हम सुरक्षित कब तक है। भाई आप घर में बैठो, जैसे कि अभी घर में भी सुरक्षित नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो जब तक हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तभी तक हम सुरक्षित है। फैंस बहुत ही अलग अलग कार्यक्रम करते, जैसे वक्ता को भी सुनना है, लेकिन संक्षिप्त में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जो एक्टिविटी सिर्फ नेम लूंगा कि 2017 में जब फैंस बड़ौदा चैप्टर एक्टिव था, उसमें हमने राष्ट्रीय सुरक्षा और चाइना चैलेंजेस पे हमने सेमिनार किया था। माननीय गोलक बिहारी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री फैंस के, उनके द्वारा ये विषय पे MS यूनिवर्सिटी और अलग अलग संस्था में इस पे प्रेजेंटेशन हुए थे। हाइफा डे सेलिब्रेशन हमने किया था। आपको पता है हाइफा विजय दिवस जो 23 सितंबर को हमने MS यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक कैंपस में किया था, जिसमें मेजर नितिन मेहता जी जो यूथ वॉरियर है 1965 और 1971, उनके द्वारा ये विषय पे प्रेजेंटेशन दिया गया था। उसके बाद हमको पता है कि जो हमारे देश के, हम जो दीपावली पे दीप जलाते हैं मिट्टी के, ज़्यादा दीपावली में चाइनीज लाइट्स वगैरह यूज होता है, तो हमने प्रयास किया था, निःशुल्क विवरण के लिए दिया था। और ऐसे काफ़ी कुछ एक्टिविटी है,
और इसीलिए हम ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि हमको सुनना है। तो फाइनली हम आज का जो विषय है उस पर हमारे वक्ता द्वारा आगे का जो भी विषय हम सुनेंगे। इतनी बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता। थैंक यू सो मच सर। सीना फौलाद, इरादे तूफानी, वो उड़ान नहीं एक आग का निशानी। ना जंग से डरता है ना तूफानों से हारा है, वो एयर वॉरियर है साहब, वो भारत की तलवार है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे की नॉट एड्रेस श्री दिनेश पटेल जी का। हेलो हेलो नमस्कार। सबसे पहले तो फौजी हैं इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गीता भी रखते हैं, कुरान भी रखते हैं, ग्रंथ बाइबल महान भी रखते हैं। फर्क नहीं करते हम मजहबों में, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। तालियां जोर से कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, जोर जोर से कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। दिस वॉज ए डायनेमिक मेडिटेशन। क्लैपिंग इज अ डायनेमिक मेडिटेशन। जब जब मौका मिले तालियां बजाते रहिए, बिकॉज इट्स इंक्रीजेज सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। हम हिंदुस्तानी इसलिए नहीं है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी इसलिए है कि हिंदुस्तान हमारे अंदर रहता है। तो मैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए डिग्निटरीज, हमारे नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिनके साथ संगठन में हम काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो जयप्रकाश सोनी जी, डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी का मैं स्वागत करता हूँ। उन कुछ दिनों से उनके साथ जोरदार तालियों से स्वागत जो भी है। कुछ दिनों से उनके साथ काम करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है। हमेशा स्माइलिंग फेस रखते हैं, सॉफ्ट है, और उनके आने के बाद काम करने का संगठन में माहौल भी बदल गया है। तो उनके लिए दो पंक्ति कहना चाहूँगा कि वैसे तो कहाँ बदलते हैं मौसम, यहाँ गुजराती में कह दूँ चलो, अमस्तु तो क्या बदलाय છે વાતાવરણ અહીંયા આપ આવે છે ત્યારે લાગે છે જાણે યુગ બદલાઈ જાય છે। અને બીજું તમે જોયું ને સ્માઇલ, એટલે સ્માઇલ થી કામ સોંપે છે ત્યારે આપણાથી ના પાડી ના શકાય શું, બરાબર છે? એટલે હાથ પાડી પડે। અને એના માટે પણ હવે हिंदीમાં કહેવા માંગીશ कि उसके लिए भी कहना चाहूँगा, मुस्कुराहट में एक ताकत है और उसको बोलते हैं तबस्सुम। तो कौन बनेगा करोड़पति जब मैं देख रहा था तो एक सरदार जी कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन के बारे में जो शायरी बोली थी, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि मिलता नहीं कातिलों से कत्ल का अंदाज तेरा, मिलता नहीं कातिलों से कत्ल का अंदाज तेरा, अपनी महफिल में बुलाते हो और तबस्सुम से मारते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बैठे हुए फैंस के सब डिग्निटरीज, सबसे भी बड़ी बात तो है सभी के सभी डॉक्टर हैं। मैं अकेला ही हूँ जो डॉक्टर नहीं हूँ यहाँ पर। तो उनके चेयरमैन सतीश कुमार जी, उनके डॉक्टर हिरानी मंकोड़ी जी, प्रोग्राम कन्वीनर
अंशुल उपाध्याय जी नमस्कार। और हमारे जिन्होंने सारा कुछ मेहनत किया, उन्होंने मेरे साथ इतने फ़ोन पे बात की और एक एक चीज़ के अंदर मेरे से डिटेलिंग लिया। और वो सुनील कहार जी बहुत मेहनत की डिटेल में चारों तरफ से। थैंक यू। अभी मेरे को जो सब्जेक्ट दिया गया है, इट इज ए वॉर देन एंड नाउ। देन का मतलब अगर कहा जाए तो महाभारत से चालू हो जाता है, लेकिन वक्त कम दिया है इसलिए वहां से मैं चालू नहीं करूंगा। लेकिन आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो बदलाव युद्ध के अंदर आ रहे हैं, हमने जो अपने अनुभव किए 1971 वॉर के, वो सब आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। दुनिया के अंदर चारों तरफ अभी युद्ध 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 चल रहे हैं और एक के बाद एक देश जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कहीं पर। और देखिए आपने बदलाव, पहले सेनाएं लड़ती थी बॉर्डर के ऊपर, अभी आपने देखा पिछले दो तीन साल के अंदर जब से हार्डली बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो रही है, सब घुस घुस के एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब वॉर हैज बिकम बॉर्डरलेस। युद्ध जो है उस पर बॉर्डर दे रही है। इजराइल का आपने देखा होगा कि भाई 5000, अरे यूक्रेन का 4000 किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने 40 जहाज रशिया के सुपर पावर के उड़ा दिए। कौन कितना ताकतवर है वो जज करना बहुत मुश्किल है। और टू द पिन पॉइंट, मतलब एकदम स्पॉट पे जाके अटैक करना। मेरी स्पीच जब तक खत्म होगी ना, उससे पहले तो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जो एयरपोर्ट है उसको उड़ा के भारतीय सेना वापस आ गई थी 29 मिनट्स। तो ये जो हो रहा है वो बहुत ही बदलाव है। हम जब लड़ते थे तो बॉर्डर के ऊपर लड़ते रहते थे, बॉम्बिंग होते रहता था, भागना से ट्रंच में घुसना, ये सब अभी कम हो गया। फट से अटैक करके वापस विदाउट एनी कैजुअलिटी। तो वॉर कहाँ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसके पीछे ने चारों तरफ जब युद्ध की बात हो रही है तो हम यही देखते हैं कि जैसे कल का एग्जाम्पल ले लो कि अमेरिका ने 25 मिनट के अंदर उनके जो न्यूक्लियर बेसेस उड़ा दिए 25 मिनट के अंदर। अब 25 मिनट्स में उड़ा दिए तो हम तो तालियां उन्हीं के लिए बजाएंगे जिन्होंने उड़ाया, एयरफोर्स के पायलट्स या B-52 बॉम्बर्स, ये सब का। उसके पीछे ये कैसे हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सब्जेक्ट को हटके बताना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस इनपुट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। हमको याद है सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे 18 मिनट्स के अंदर हमारी फौज घुस के 300 लोगों को मार के वापस आ गई थी। एम आई राइट? आपको याद होगा सब कुछ। 18 मिनट्स के अंदर एक भी कैजुअलिटी नहीं है। और पाकिस्तान वाले सो रहे थे और उनको उठा के बताना पड़ा कि आप पे 300 लोग गए, बराबर, तब जाकर उनको पता चला। अभी का आप देखो नूर खान के ऊपर जो अटैक हुआ, वहां के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहा रहा था और उसने बोला कि इंडिया अटैक करके चला गया। चीजें आप देखो। तो इसके पीछे जो मैं चाहता हूं कि भाई इसके पीछे जो रियली बिहाइंड द स्क्रीन हीरोज है उसका मैं आपके ऊपर जिक्र करना चाहता हूं कि कितनी सेक्रीफाइसेस हो रही है, क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। तो फॉर एग्जांपल कि इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो काम कर रहा है। मान लो 300 टेररिस्ट एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और जब तक हमको मैसेज मिले और वो मैसेज अगर सही न हो तो हम बॉम्बिंग करके आएंगे और वहां पर कोई मरा ही नहीं होगा। जैसे ईरान अभी बोल रहा है कि हमने सब हथियार वहां से हटा लिए थे, न्यूक्लियर वेपन सर। क्या पता क्या सच है उसके अंदर। लेकिन फैक्ट इसके इंटेलिजेंस का जो इनपुट है वो इतना परफेक्ट, करेक्ट और लाइव होना चाहिए। 4 दिन पहले यहाँ 300 आदमी थे, उसका प्लानिंग करते हम अटैक करेंगे तो 4 दिन के बाद तो शिफ्ट हो गए। बिकॉज टुडे वी डिफेंस फोर्सेस आर ऑलवेज ऑन द मूव। हमारे भी जो यूनिट बॉर्डर पे थे उनको एक जगह लंबे टाइम पे नहीं रखा जाता था, शिफ्ट किया जाता था ताकि दुश्मन को एक लोकेशन का परमानेंटली कि यहीं पर है और यहीं पर ठोक दो, ये बातें नहीं चलती है। इट इज ऑलवेज ऑन द मूव एंड मोबिलिटी, और मोबिलिटी को अपना ये करना है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इंटेलिजेंस जो रॉ है अपनी, या मोसाद है, या KGB है, या CIA है, या FBI है, इनके सारे जो ऑपरेशन है उसके बारे में थोड़ी टिप्स आपको देना चाहता हूँ कैसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। मैं 1969 की बात कर रहा हूँ, 1965 की बात कर रहा हूँ। अमेरिका एक एरोप्लेन बना रहा था F-14 जो बन रहा था उसके पीछे 2 कंपनियां लगी थी और इट टुक 14 ईयर्स, 14 साल के बाद वो एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हुआ।
और दुनिया में हाहाकार मचा दिया कि इतना पावरफुल हेलीकॉप्टर कभी नहीं बना फाइटर। लेकिन अमेरिका को इतना महंगा पड़ा था, 2 कंपनियां बंद होने की नकार पर आई, कि महंगा इतना था कि अमेरिकन एयरफोर्स ने भी ज्यादा ऑर्डर नहीं दिए। अभी कम से कम 50 मशीन ना बिके, 50 फाइटर्स, तो कंपनियां बंद करने की नौबत आ गई थी। तब शाह ऑफ ईरान थे उस वक्त, उनको बुलाया गया। जैसे यहाँ फील्ड मार्शल मुनीर को बुला के लंच दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसको खिलाया, उसके मानपन बढ़ाया, और पाकिस्तान बेस के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि हम यहाँ से अटैक करेंगे। उसी तरह से शाह ईरान को बुला के वो 14 साल जो F-14 है 50 का ऑर्डर दिया। बोलते हैं कि अमेरिका में जब शाह ईरान गए थे तो जैसे चना ममरा खरीदता है नहीं, हमें एरोप्लेन का ऑर्डर आ गया। 14 F-14 के 50 प्लेन के ऑर्डर, तब जाकर कंपनियां बची। अब जब इतना दुनिया में हाहाकार मचा था, तब रशिया की ओर से कोई भी ये नहीं था, कोई रिस्पॉन्स या कोई रिएक्शन। तो अमेरिका को सरप्राइज हुआ, पूरी दुनिया में F-14 ने हाहाकार मचा दिया है, व्हाट इज हैपन टू रशिया। तो CIA को मिशन दिया गया कि फाइंड आउट व्हाई रशिया इज नॉट रिएक्टिंग। CIA ने फाइंड आउट करके बताया कि उनकी KGB और CIA दोनों, अरे FBI और CIA दोनों ने इनपुट वहां से निकाला कि आप जिस प्लेन के ऊपर इतना घमंड दिखा रहे हो ना, MiG-25 उस टाइम पे इज फ्लाइंग इन द रशियन एयर सिंस लास्ट 2 years, which is far ahead of F-14। प्राइस उसका 80 किलोमीटर का अगर रेंज है तो MiG-25 का 100 किलोमीटर का रडार रेंज है। ये अगर 400 मीटर पर सेकंड का उसका क्लाइंबिंग रेट है तो इसका 600 का है। वो डबल इंजन के साथ फ्लाई करता है, 2 पायलट के साथ फ्लाई करता है। MiG-25 is flying with a single pilot, single engine, and it climbs to almost a level of weightlessness। उतने हाइट पर वो क्लाइंब कर सकता है, ऐसा एयरक्राफ्ट उन्होंने बनाया था। अभी सवाल है कि अमेरिका वो सरप्राइज एंड इट वाज अ पैथेटिक कि भाई ऐसा एक प्लेन फ्लाई करो, वो भी 2 साल से देर अहेड ऑफ अस, 2 years इन द टेक्नोलॉजी। तो ये मिशन इंटेलिजेंस को दिया गया कि उस प्लेन को अपने को हाईजैक करना है। ज़्यादा लंबी स्टोरी मैंने बताऊँ, लेकिन उस प्लेन को हाईजैक करने के लिए कौन उसको फ्लाई कर रहा है, वो पायलट कहाँ, कौन फ्लाई करके लाएगा, कैसे उसको कन्विंस किया जाए, कैसे उसको क्या बोलते हैं डबल एजेंट बनाया जाए और वो फ्लाई करके ले आए। 50 साल पहले का जितने लोग MiG-25 की पायलट फ्लाई करते थे उसका रिसर्च किया गया। 50 साल पहले उनके फोरफादर अमेरिकन से उसको चुना गया। काफ़ी सारे एक्सरसाइज हुए, 2 साल लगे, लेकिन वो प्लेन लेके वहाँ से भागा। और तब तक सिर्फ उसके पास 20 मिनट का टाइम था कि वो एक्सरसाइज में था, और वहाँ से उसको जापान की ओर बोला था कि वो डायरेक्ट वो अमेरिका पहुँच नहीं सकता MiG-25 से। तो जापान के साथ टाइप किया गया, वहाँ उस प्लेन को लैंड करवा गया। लैंड करवाने के बाद वो प्लेन को जापानीज इंजीनियर्स और अमेरिकन इंजीनियर ने खोला तब पता चला इज फार सुपीरियर। एंड नॉट ओनली दैट, उसका जो मेटल है ना वो किस चीज़ का बना है दे कुड नॉट फाइंड आउट, एंड दे फाउंड दैट रशिया इज अहेड बाय 10 years इन मेटलर्जी। इतना बड़ा रिसर्च वहाँ पर हुआ था, बट ये सारा स्पाई का ऑपरेशन था। तब जाके वो प्लेन मिला। उसके बाद फिर F-16 बना जो आज हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास और उनके पास है। तो ये सब चीज़ें ये डेवलपमेंट होती है। इजिप्ट और इसराइल का वॉर 1969 उसके अंदर हुआ था। ये मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो ऑपरेशंस, जो मिशन 15 मिनट 20 मिनट में 25 मिनट में हो रहे, उसके लिए कई सालों से तैयारियां चलती हैं, कई सालों से। इजिप्ट के साथ इसराइल का वॉर 1969 में होने वाला था। तो उससे पहले इसराइल को वहाँ के जो अंडरग्राउंड रडार यूनिट बनाए हुए थे जिससे प्लेन को कैप्चर कर लेता था, वो पकड़ना जरूरी था। उन्होंने प्लान बनाया। वो प्लान ऐसा बना था कि एक लेडी जो जासूस थी उनकी, जो इंटेलिजेंस की स्पाई थी, उसको ट्रेन किया गया। ट्रेन करके इजिप्ट आर्मी में भर्ती कराया गया। वहाँ का जो कैप्टन था इंचार्ज, रीडर डाइजेस्ट के अंदर ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है, द स्पाई हु वैनिश्ड करके 1979 में। तो वो जो लेडी थी उसको वहाँ के उस कैप्टन के साथ हनी ट्रैप जिसको बोलते हैं वो करना है, उसके साथ शादी करनी है, और जहाँ पर वो रडार यूनिट है अंडरग्राउंड उसका रिसर्च करके उसका इंफॉर्मेशन लाना है। ये मिशन उसको दिया गया। सी वेंट देयर, एवरीथिंग वेंट
1.5 साल लगे, उसने मैरिज भी कर लिया, उसको आर्मी में भर्ती भी करवा दिया। कितना बड़ा ऑपरेशन और कितना सीक्रेटली। आपकी आर्मी में एक आदमी, एक लेडी भर्ती हो रही है और आपको पता भी नहीं है, कैप्टन के साथ शादी हो रही है, शी इज स्पाई, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, उसको पता नहीं मेरी वाइफ स्पाई है। आप ऑपरेशन का जो बोलते थे कि लॉयल्टी देखो। लेकिन एक दिन इसको पता था कि कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। वो मिशन कंप्लीट करने ही वाले थे, पूरी डिटेल, पूरे मैप सब कुछ बनाने के बाद अचानक वो घर पे पहुंचता है और उसकी वाइफ को वायरलेस से मैसेज देते हुए पकड़ लेता है। और वो पकड़ लेता है, उसको पता है कि अंजाम सिर्फ मौत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। और इजिप्ट और मुस्लिम कंट्री में तो शूट एट साइट का जैसा ऑर्डर्स होता है। तो कैप्टन ने अपनी वाइफ को बोला कि भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत बड़ा तुमने धोखा किया है। तो उसने बोला देखो तुम अपने देश के लिए काम कर रहे हो, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, तो आपको मेरे को इसके लिए जो भी सजा देनी है मैं तैयार हूं। सिर्फ एक ही बात करना कि हम 1.5 साल रहे, थोड़ा बहुत प्यार हमने एक दूसरे से किया है, तो मेरे को एक ही प्रॉमिस करो कि मेरे को मारने के बाद मेरी बॉडी मेरे देश में मेरे माँ बाप के साथ पहुंचा देना। कितना प्रॉमिस करो। अब सोचो इतना, और उसको कोर्ट मार्शल किया गया इमीडिएटली, ऑल इन सीक्रेट चैम्बर, और उसको शूट एट साइड पर उसको मौत के घाट उतारा गया। शी कुड सेंड ओनली वन मैसेज टू द इजराइल KGB, एक ही मैसेज वो भेज सकी कि रिसीव माई बॉडी, मिशन कंप्लीट। जोर से तालियां हो जाओ। बॉडी जब पहुंची वहां पर, उसके अंदर मैप था, उसके अंदर मैप था। सोचो ये जो हमारे एजेंट्स हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। आप अपने अजीत डोभाल जी को तो जानते ही हैं, 7.5 years पाकिस्तान में जासूस रहे हैं, किसी को नहीं पता चला है। और आज जो मेटिकुलस प्लानिंग कश्मीर में और सब जगह कर रहे हैं, आप सब जानते ही हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सस्पेंस। देयर आर 2 एलिमेंट्स जो जीत के लिए आपको चाहिए, सस्पेंस एंड सरप्राइज। सस्पेंस रखना है और सरप्राइज रखना। जितना एनिमी को आप सस्पेंस में रखोगे और सरप्राइज में रखोगे, हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया ही है। 12 दिन तक हम इनको नींद नहीं आ रही थी पाकिस्तान को, इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा। 8 घंटे की मीटिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर, MEA, अपने रक्षा मंत्री, फिर 6 घंटे की मीटिंग 3 घंटे में दूसरे दिन होती है, 3 घंटे की मीटिंग दोपहर के बाद 2 घंटे होती है, उसके बाद 20 मिनट होती है। वहां पर वो सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है, इंडिया का क्या करने वाला। साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है कि दुश्मन को जो हराना है, इसको बोलते हैं वॉर फॉगिंग। वॉर फॉगिंग का मतलब है कि भाई एक मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एनिमी को ला दो। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको देता हूं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर एक के बाद एक कंट्री जीत रहा था, उसको जीतना था किसी तरह से ब्रिटेन। और ब्रिटेन को जीतने के लिए उसको ब्रिटेन को कैप्चर करना जरूरी था। ब्रिटेन को क्यों जीतना था? क्योंकि उसका इंडियन आर्मी चाहिए था। और उसका इंडियन आर्मी के ऊपर इतना भरोसा था कि हिटलर यूज्ड टू से, इफ आई हैव इंडियन आर्मी एंड जर्मन ऑफिसर्स, आई विल वॉक ओवर द वर्ल्ड। ये इंडियन आर्मी के लिए हिटलर ने बोला था। तो उसको अभी उसको लंदन पे अटैक करना है। उसने प्लान बना लिया कि लंदन पे अटैक कर देते हैं, तो 200 एयरक्राफ्ट 100 एयरक्राफ्ट अटैक करेंगे ऐसा करके। लेकिन लंदन में जैसे अटैक होगा, वहां सामने से सब प्लेन टेक ऑफ हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने 150 ग्लाइडर्स बनवाए, 150 ग्लाइडर को हवा में फेंका। जब वो हवा में चले गए तो लंदन में पता चल गया है ब्रिटेन को कि काफी सारे एयरक्राफ्ट 150 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, और वहां से ओरिजिनल जो एयरक्राफ्ट थे वो टेक ऑफ हो गए। इन्होंने पीछे से जाके अटैक करने का था, पीछे से जाके अटैक करना। जब ये सब लंदन के साथ अराउंड जितने एयरपोर्ट है वहां से सब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गए, तब जाके इनको पीछे से अटैक करना था। एग्जैक्टली उसी टाइम पे बारिश चालू हो गई। अब उस जमाने में वो प्लेन नहीं थे कि ऑल वेदर प्रूफ जैसा आज है वैसे। तो ATC ने बोल दिया कि कांट फ्लाई। तो हिटलर ने बोला कि माय ऑर्डर जो भी है, बोलता हमारे एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएंगे। बोलता व्हाट और में हैपन, ऑर्डर इज ऑर्डर, एंड ब्रिटेन को बॉम्बार्डिंग करना है, लेकिन लंदन को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंदन उसका फेवरेट था। सिर्फ एयरफील्ड को खत्म करो।
पायलट को ऑर्डर, सब पायलट को ऑर्डर मिला, उनको टेक ऑफ करना पड़ा। टेक ऑफ करने के बाद अराउंड लंदन इतनी हैवी बॉम्बिंग की गई कि 5 मिनट के लिए बारिश रुक गई हीट की वजह से। और इसीलिए बोलते हैं फौज के अंदर कि इस जान में ऐसे भी लोग हैं जो मौसम देखकर अपने तेवर बदलते हैं, और इस जान में ऐसे भी लोग हैं जिनके तेवर देखकर मौसम बदलते हैं। तो ये जो है एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड सरप्राइज कैसे आ रहा है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखा, सर्जिकल स्ट्राइक में भी करके दिखा है। और अभी जो युद्ध हमारे जो अभी होने वाले हैं, आपने इजराइल का केस देखा होगा, पेजर ब्लास्ट हुए थे। पेजर जितने टेरर वहां पर जो हमास थे उनको उन्होंने क्या किया था कि मोबाइल से सिग्नल कैप्चर होते थे, तो मोबाइल से जो सिग्नल कैप्चर होते उन्होंने पेजर पे स्विच कर दिया। कभी कभी पुरानी टेक्नोलॉजी हमको नई टेक्नोलॉजी को हराने में काम आती है। अब पेजर पे जब शब्द किया तो जब उनको पता चला तो 2 साल लगे। इमेजिन कि भाई सामने दुश्मन की कितनी इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए ये ऑपरेशन करने के लिए, कि भाई हमास वाले जो शिफ्ट हो रहे पेजर के ऊपर, तो पेजर सप्लाई होंगे। पेजर कौन सप्लाई करेगा, उस कंपनी को टेक ओवर किया गया। वो कंपनी के पेजर के अंदर बॉम्ब डाले गए, उसका टाइमिंग और उसका अलॉटमेंट रखा गया कि कब फायर करना है, और उसका कंट्रोल इजराइल ने अपने पास ले लिया। अभी इसको 1.5 साल हो गए। 1.5 साल तक मौका ढूंढना है कि कब ऐसा मौका होगा कि सभी के सभी पेजर चालू होंगे और सभी के सभी पेजर अब तक ब्लास्ट करते हैं, और वो टाइमिंग निकाला गया। और एक्चुअली पता चला कि बाद में भी पेजर से वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी टेक्नोलॉजी पे। तुरंत एक्शन लिया गया, 2 घंटे के अंदर 5,000 पेजर को ब्लास्ट कर दिया गया। क्या पता आपके पास जो मोबाइल है और मेरे पास जो मोबाइल है उसमें भी किसी ने बॉम्ब फिट करके रखा है। यू डोंट नो, यू नेवर नो। तो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट यहाँ पर होती जा रही धीरे धीरे करके। और लेकिन युद्ध के बारे में अपने प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही थी यूक्रेन का युद्ध के बारे में, कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है। और आप देख लो किसी भी युद्ध का किसी भी युद्ध का अंत नहीं हो रहा है। हमारा अनुभव ये कहता है कि इट इज, इवन जनरल मानेकशॉ ने कहा है कि इट इज द ग्रेट करेज डज नॉट लाई इन फाइटिंग द वॉर, बट द ग्रेट करेज लाइज इन अवॉइडिंग द वॉर। बराबर? तो वॉर अवॉइड करना, इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर को सडनली वाइंड अप किया गया, कितना सारा डिबेट हो गया, पीओके ले लेना था, ये ले लेना था, वो लेना था। लेकिन क्या पता उसमें सब फुल फ्लेज वॉर पे हो जाते हैं। चारों तरफ साजिश हो रही थी कि वॉर पूरा का पूरा इंडिया को इन्वॉल्व कर दो। और एक भी देश, रशिया का, जब मेरे सभी टीवी पे इंटरव्यू उस वक्त आ रहे थे कि यूक्रेन रशिया ने जब स्टार्ट किया तो पता चला था कि सिर्फ 1 वीक के अंदर रशिया विल कैप्चर द यूक्रेन। व्हाट हैपेंड? आज पता नहीं है रशिया ने कितना लॉस किया। और तो दूसरी बात, आज के युद्ध के अंदर हम जीत नहीं सकते। इसलिए किसी ने कहा है कि जंग क्या मसला हल करेगी, जंग खुद ही तो एक मसला है। तो जंग के जो है खुद ही एक मसला है, और इसलिए हमें जंग में जहां तक हो सके उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा। और भारत ने ये बात बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी से कर दी है। आगे भारत का जो डेवलपमेंट है वो बोल के मैं अपना प्रवचन पूरा करूंगा कि आगे इंडिया का जो ब्रह्मोस का जो अटैक हुआ, और ब्रह्मोस ने, और आपको पता होगा कि मिस्टर टॉम कूपर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रिलायबल डिफेंस एनालिस्ट। उसने सारे युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक के युद्ध के अंदर उन्होंने कम से कम 50 किताबें लिखी है। एंड हिज बुक्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स इन द वर्ल्ड। वो हर एक डिटेल को महीनों तक स्टडी करता है, देन ही पब्लिशेस द बुक, और वो बुक उसने पब्लिश की है। उसके अंदर उसने लिखा है कि इंडिया हैज, जो इनका जो एयरफोर्स मतलब जो न्यूक्लियर बेस है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास है मिनट टू मिनट। और ब्रह्मोस का अनएक्सपेक्टेडली इट हैज गॉन सो डीप इनसाइड उनके बंकरों के अंदर इतने तक घुस गई थी कि अगर एक दिन और मिलता ना तो शायद हिंदुस्तान ने, जैसे अभी अमेरिका बोल रहा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर बेस खत्म कर दिए, हिंदुस्तान ने खत्म कर दिया होता। तो वो जो ब्रह्मोस ने जो काम करके दिखाया है, वो काम के लिए
मतलब उसकी वजह से इवन अर्थक्वेक आ गया, 4 स्केल का अर्थक्वेक जनरली, और उसके बाद 2 और उसके बाद 1, ये तरह से अर्थक्वेक कभी आता नहीं है और कंसिस्टेंटली मतलब 5-10 मिनट तक इट हैज हैपेंड प्रोबेबली ओनली बिकॉज ऑफ ब्रह्मोस वेंट इनटू द बंकर्स। और ब्रह्मोस की अचीवमेंट के बाद आप जानते हैं हमारे पास कितनी इंक्वायरीज है? 17 कंट्रीज है अप्रोच इंडिया वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मोस खरीदने के लिए। गुरेंग आप 17 कंट्री ने अप्रोच किया है, सोचो आप। बीच में तो एक जोक भी पब्लिश हुआ था कि ब्रह्मोस की सफलता देख के शाहबाज खान ने भी नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा कि वी वांट टू बाय ब्रह्मोस। तो मोदी जी ने उनको जवाब दे दिया व्हाट इज द प्राइस, तो बोला आपके लिए फ्री है, डिलीवरी कहाँ करनी है बता दो। तो वो ये ब्रह्मोस की हमारी ताकत है। और आखिर में तो जैसे S4 का बहुत सारा अभी चर्चा चल रहा है। S4 रशिया ने हमको ये सिस्टम दिए, और एक भी ये ऑपरेशन सिंदूर का एक लाइन के अंदर कंक्लूजन आपको दे देता हूँ। उनका एक भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ और हमारा एक भी अटैक फेल नहीं हुआ। क्या भी हो सकता है, उससे ज्यादा एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब दे आर नॉट सक्सेसफुल इन एनी अटैक, दिस बिकॉज ऑफ S-400 रशिया ने हमको दिया हुआ है, बराबर। और अभी प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, सुना है किसी ने नाम, स्टूडेंट ने खास करके? प्रोजेक्ट कुशा किसको पता है? किसी को नहीं पता। DRDO इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट कुशा। ये S-400 से सुपीरियर हम एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, और उसको आने में अपने को 2 साल में प्रोटोटाइप बनेगा, फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स को दिखाया जाएगा, उनका अप्रूवल लिया जाएगा, उनके सजेशन लिए जाएंगे, ऑल वेदर में काम करता नहीं दिया जाएगा। इट इज गोइंग टू बी फार सुपीरियर इन ऑल पैरामीटर्स देन S-400, and it will take at least nearly 5 years or so to induct into the defense services. उसके बाद हमको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये बनने जा रहा है। दोस्तों, मुझे वक्त का इंडिकेशन आ गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त में ख़त्म करूँ, क्योंकि क्या होता है, मेरी आसाम में पोस्टिंग थी और वहाँ पर ऐसे एक फंक्शन के अंदर, हमारे एयरफोर्स स्टेशन में फंक्शन था, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर एक थे वहाँ के लोकल, उनको बुलाया गया। जब उनको स्पीच देने के, हमारे कमांडर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दे स्पीक डायरेक्टली, जो भी बोलना है, ऐसा घुमा फिरा के नहीं। तो जब उनका नंबर आया कि भाई सर आपको कुछ 2 शब्द कह दें, तो उस टाइम उन्होंने पूछा कि कितनी देर में बोल सकता हूँ। तो हमारे कमांडर ने कहा आप चाहे जितनी देर बोलना चाहो बोल दो, हम 10 मिनट के बाद ये हॉल खाली कर देंगे। ऐसा मेरे साथ ना हो, इसलिए मैं सिर्फ आखिर में आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, दोस्तों हम हिंदुस्तानी हैं, बराबर। तो कांटों में रहकर भी फूलों से महकना सीखो, कांटों में रहकर भी फूलों से महकना सीखो, कीचड़ में रहकर भी कमल से खिलना सीखो। परिस्थितियों से जो डर जाए वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। राख में रहकर भी अंगारों से दहकना सीखो। और जोरदार तालियां हो जाए। साथ में हमारे बीच में उपस्थित है कर्नल अमृतलाल मकवाणा, प्रमुख गुजरात राज्य पूर्व सैनिक सेवा परिषद। वी वेलकम सर। और वेटरनर अशोक चावड़ा जी, नेशनल सेक्रेटरी। वंस अगेन वी वेलकम। आज के इस विशेष अवसर पर इट्स ट्रूली एन ऑनर फॉर मी टू वेलकम समवन who has balanced education, discipline and leadership in a graceful way. हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी is not just the current president of BJP, Vadodara City, but also someone with a strong academic and administrative background. उन्होंने MBA और PhD जैसे उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को ज्ञान से समृद्ध किया है।
एमएस यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जैसे प्रमुख इंस्टीट्यूशन में उन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार के रूप में सेवा दी है और बचपन से ही आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में जुड़े हुए हैं, ब्रिंगिंग ट्रू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू टू एवरी रोल ही टेक्स. Let us welcome with a big round of applause Dr. Jayaprakash Soni. સૌને નમસ્કાર. સેમિનારનો જે સબ્જેક્ટ છે વોર્સ નાઉ એન્ડ ધેન એન્ડ નાઉ, એનું વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપણને દિનેશભાઈ આપ્યું. એમના અલગ અંદાજ પણ જોવા મળ્યો મને. મારે તો મળવાનું થતું હોય છે ઘણી વખત. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગના વડોદરા ચેપ્ટરના ડૉક્ટર સતીશભાઈ, ડૉક્ટર હિરાનીબેન, ફેન્સના કાર્યકર્તા, આજે કાર્યક્રમની મુખ્ય યોજના બનાવનાર એવા મારા મિત્ર એવા ડૉક્ટર સુનિલભાઈ, ડૉક્ટર અંશુલબેન, આધારભાઈ, પ્રશાંતભાઈ અને અન્ય સૌ કાર્યકર્તાઓ જેમના એક વિચાર આવ્યો, મારી સાથે શેર કર્યો કે આવું આપણે કંઈક કરવા જઈ રહ્યા છે. તો મેં તો તરત કહ્યું સારી જ વાત છે. અને પછી બીજો પ્રસ્તાવ આવ્યો કે તમારે આવવું પડશે. તો આ આગ્રા વિષય ક્યાં લઈ જાઓ છો મને? પણ જેવી રીતે દિનેશભાઈએ વાત કરી, ભારત એ યુદ્ધની નહીં બુદ્ધની ભૂમિ છે. એટલે આપણે તો સ્વપ્નમાં યુદ્ધ વિચાર કરતા જ નથી. આક્રમણો જેટલા પણ થયા છે ભારત પર, આપણે શરૂઆત નથી કરી ક્યારે. આક્રમણખોરો બહારથી આવ્યા છે પણ જવાબો પણ આપ્યા છે. એ પછી પુરાણ કાળમાં જે આપણે વાંચ્યું અને સાંભળ્યું છે, મહાભારતનું યુદ્ધ હોય, એના પહેલા રામાયણ, રામ અને રાવણનું યુદ્ધ હોય, કેવા અનેક પ્રકારના ઐતિહાસિક યુદ્ધો આપણે સાંભળ્યા પણ છે, ક્યાંક વાંચ્યા પણ છે, કે આપણને અભ્યાસ દરમિયાન ભણાવવામાં આવ્યા પણ છે. થોડાક સમય પહેલા જોઈએ તો મુગલોના સમયમાં શિવાજી મહારાજ હોય કે મહારાણા પ્રતાપ હોય, ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોય, રાણી લક્ષ્મીબાઈ થોડાક વર્ષો પહેલા, તો યુદ્ધ તો સમય સમય પર થતા જ રહ્યા છે. પરંતુ ભારતના લોકોએ યુદ્ધની કોઈ શરૂઆત નથી કરી. પણ જરૂરત પડે તો એમને સંઘર્ષ કરીને સંસ્કૃતિને અને ધર્મની રક્ષા કરવા માટે આપણા લોકો લોહિયાળ સંઘર્ષ બી કર્યો છે. શરૂઆતમાં જે યુદ્ધ લડાતા એમાં આપણને સૌને ખ્યાલ હશે કે બહુ જૂના જમાનામાં ઘોડા, હાથી, અલગ અલગ પ્રકારના અસવારો, તલવાર, તીરંદાજી એવા પ્રકારના શસ્ત્રોથી યુદ્ધ લડાતા હતા. એના પછીના સમયમાં તોપગોળા આવ્યા. ત્યારબાદ અંગ્રેજોના સમયે બંદૂકો પણ આવી. ધીમે ધીમે આગળ જતા આપણે જોયા કે યુદ્ધના શસ્ત્રો બદલાતા ગયા. પણ યુદ્ધની ભૂમિકા આવી ને રહી. આજે પણ દુનિયાની અંદર કેટલીય રણભૂમિમાં યુદ્ધ ખેલાઈ રહ્યા છે. એ પછી યુક્રેન રશિયાનું યુદ્ધ હોય, ઇઝરાયલ હમાસનું યુદ્ધ હોય, ઈરાન અમેરિકાનું યુદ્ધ હોય, એના પહેલા પણ કેટલા બધા યુદ્ધ થઈ ગયા. વર્તમાનમાં પણ આ યુદ્ધ ચાલુ જ છે. પણ ભારત હંમેશા યુદ્ધની ફેવરમાં રહ્યો નથી. આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ તો હમણાં પણ જે G7 સમિટમાં ગયા હતા, અમેરિકાના પ્રવાસે હતા, બાકી બધી પણ જગ્યા જ્યાં પણ જાય છે, આ એક વાત તો જરૂર કરે છે કે આ સમય યુદ્ધનો છે જ નહીં. કારણ કે યુદ્ધ તો ઓલરેડી ચાલી જ રહ્યા છે. તમારા મનની સાથે યુદ્ધો ચાલી રહ્યા છે. અત્યારે યુવાનોની અંદર સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે. આપણો સમય બરબાદ કરવા માટે અનેક પ્રકારના એવા વિડીયો બનાવીને મૂકવામાં આવે છે. આપણે જોતા જ રહીએ, ક્યાં સમય પસાર થઈ ગયો ખબર ના પડે. એ પણ એક પ્રકારનું માનસિક યુદ્ધ છે. માઇન્ડ વોર રમી રહ્યા છે.
આપણા યુવાનોને ભટકાવવા માટેના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. કેટલીક વિજ્ઞાપનો પણ એ પ્રકારની આવી રહી છે. એ પણ એક પ્રકારનું યુદ્ધ જ છે. આપણા સાંસ્કૃતિક, સામાજિક, આર્થિક જે ઢાંચો છે ભારતનો, એ મજબૂત ઢાંચો છે. આજે આટલા સંઘર્ષો પછી, આપણે 1800 વર્ષ સુધી સંઘર્ષો કર્યા છે, છતાં પણ ભારત ટકી રહ્યું છે. એનું મૂળભૂત કારણ શું છે ખ્યાલ છે આપણને? એક જ માત્ર તત્વ છે, એ માત્ર ને માત્ર આધ્યાત્મિકતા. હમણાં મહાકુંભ થયો પ્રયાગરાજમાં. ભારત વર્ષના 140 કરોડ પ્રજાજનોમાંથી આંકડો આપણે જોયો હશે, 68 કરોડ 70 કરોડ લોકો જઈને સ્નાન કરે છે. શું કામ સ્નાન કરે છે? ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવા ક્યારે નહીં મળતું એમને? કેમ એ જ સમયે જવાનું? કેમ એક સાથે જવાનું? શું બતાવે છે? આધ્યાત્મિકતાની પરાકાષ્ઠા એ મહાકુંભ છે. અને ભારત દેશ ટકી પણ એના કારણે રહ્યો છે. નહીતર તો એટલા બધા સંઘર્ષો થયા, કેટલા વર્ષો ગુલામી ભોગવી. પહેલા મોગલો શાસન કરતા હતા, ત્યારબાદ અંગ્રેજો શાસન કરતા હતા, વચ્ચે વચ્ચે પણ અનેક લોકો આવી ગયા, પણ ભારત કોઈ દિવસ તૂટ્યો નથી. એનું એકમાત્ર કોઈ કારણ હોય ને તો આપણી આધ્યાત્મિકતા છે. એટલે આપણે વાત કરીએ કે આ યુદ્ધની ભૂમિ નથી, આ બુદ્ધની ભૂમિ છે. અહીંયા અહિંસાની કોઈ વાત નથી, અહિંસાની જ વાત છે. પણ સાથે સાથે ભારત સમર્થ પહેલા પણ હતું, આજે છે અને કાલે પણ રહેશે. ભારત આજે પહેલા પણ હતું અને આવતા સમયમાં પણ રહેવાનું જ છે. કારણ કે નિયતિનો એ ખેલ છે, કોઈ કરી નહીં શકે. આજે બધા જ દેશો ભારત સામે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેમ બ્રહ્મોસની વાત કરી, આ તો એક ઉદાહરણ માત્ર છે. આવા અનેક વસ્તુઓમાં, અનેક વિષયોમાં ભારતની સલાહ લેવામાં આજે પણ આવે છે. કારણ કે આપણી કોઈ પણ વાત સાયન્સ બેઝડ હોય છે અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિકતા પણ જોડાયેલી હોય છે. શ્રદ્ધા સાથે વાત કરીએ છીએ. આપણે નદીઓને પણ પૂજીએ છીએ, પર્વતોને પણ પૂજીએ છીએ, પશુમાં ગાય માતાને પૂજીએ છીએ. કઈ એવી વસ્તુ જેને પૂછતા નથી આપણે? પ્રકૃતિને વંદન કરીએ છીએ. આજે આટલી મોટી જે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા છે વિશ્વની અંદર, ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાત થઈ રહી છે, એવા સમયમાં લોકો ભારત તરફ જ જોઈ રહ્યા છે. બીમારીઓના ઘર થઈ ગયા છે તો પણ એની સમસ્યાનો ભારતના આયુર્વેદ, નેચરોપેથ એ બધામાં જ જોઈ રહ્યા છે. એ બધા યુદ્ધનું સોલ્યુશન પણ કોઈ લાવી શકશે તો એ માત્ર ને માત્ર ભારત દેશ જ લાવી શકશે. પરંતુ એના માટે કરવું શું પડશે મિત્રો? કરવું એટલું જ પડશે, આપણે સશક્ત થવું પડશે, આપણે મજબૂત બનવું પડશે, આપણે સમર્થ બનવું પડશે, આપણે વિકસિત બનવું પડશે. આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે તો સંકલ્પ કર્યો છે કે ભારતના 100 વર્ષ પૂર્ણ થાય આઝાદીના, ત્યારે ભારત વિકસિત ભારત બને. હું વિકસિત ભારતની અંદર સાથે સાથે જોડું છું કે આ ભારત વિકસિત બનશે, ભારત સમર્થ બનશે, ભારત અજેય બનશે અને ભારત વિશ્વગુરુના સ્થાને બેસશે. આ ઈશ્વર પણ ઈચ્છે છે. કારણ કે સમગ્ર વિશ્વને કોઈ દિશા કોઈ આપી શકતું હોય દરેક વિષયોની અંદર, એ માત્ર ને માત્ર વિશ્વમાં એક જ દેશ છે, એ ભારત દેશ છે. પણ એના માટે આપણે મિત્રો કરવું શું પડશે? આપણે આપણું યોગદાન આપવું પડશે. એકલા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબથી નહીં થાય કે થોડાક લોકોથી નહીં થાય. 140 કરોડ અહીંના લોકો જો વિચારે ને તો ઘણી બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન એ આપણી પાસે જ છે. એક નાનું ઉદાહરણ આપું, એક બે, આપણને એનાથી ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે માની લો કે નાગરિક તરીકે સંકલ્પ લઈએ કે હું ગંદકી નહીં કરું. કેટલું મોટું પરિવર્તન આવી જાય. કોઈને કંઈ કહેવાની જરૂર પડે? એ સંકલ્પ તો કોના માટે લેવાનો છે? પોતાના માટે પહેલા તો. કારણ કે હું સ્વચ્છ રહીશ તો મને બીમારી નહીં આવે. સિમ્પલ જ છે ને. હું દરેકે દરેક નાગરિક ધર્મનું પાલન કરીશ, જે પણ નિયમ બનેલા છે. આવું આપણે વિચાર કરીએ તો કેટલું મોટું પરિવર્તન આવે. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની પ્રમાણિકતાના કારણે ટેક્સ દિવસે દિવસે વધી રહ્યો છે. કેમ વધી રહ્યો છે? લોકોને એવું લાગે છે કે આ સાહેબ કંઈક કામ કરી રહ્યા છે, એટલે મારે પ્રમાણિકતાથી ટેક્સ ભરવો જોઈએ. કેમ પહેલા નહોતું ને હવે થયું?
આપણે જો નાગરિકો આટલું નિર્ધાર કરીએ ને તો આપણે સમર્થ, અજય અને વિકસિત બની શકીએ એમ છે. અને બનવાની એટલે જરૂર છે. આ દુનિયાની અંદર જે ચક્ર ચાલી રહ્યા છે ને, એ ચક્રમાંથી ઉગરવું હશે, જેમાં આપણે પણ એક હિસ્સો છીએ. આપણે અલગ નથી. આ પાકિસ્તાન જોડે હમણાં ઓપરેશન સિંદૂર થયું, આપણે પણ ભોગવટો છે. આ તો ઓપરેશન સિંદૂર આપણે પૂર્ણ વિરામ નથી મૂક્યું, અલ્પ વિરામ મૂક્યું છે. અને એ સાથે અલ્પ વિરામ મૂક્યું છે કે હવે જે અમારા 28 લોકોને તમે હત્યા કરી હતી ખુલ્લેઆમ, એવું એક પણ જરૂર થશે ને, એકની સામે અમે 100 કરીશું. એવી ખુલ્લી ચેતવણી પણ આપેલી છે. ઓપરેશન સિંદૂર આમ મને તો ખ્યાલ નથી, પણ આર્મી ને આ બધામાં એવું હોય છે કે એકવાર ઓપરેશન હોય એને ક્લોઝ કરવું પડે, પણ ઓપરેશન સિંદૂર ભારત સરકારે ક્લોઝ નથી કર્યું. એ ટેરરિઝમ સામેનું ઓપરેશન છે. અને જ્યાં સુધી ટેરરિઝમનો એક ખૂણો પણ ક્યાંય ભારતમાં બાકી રહેશે ત્યાં સુધી ઓપરેશન સિંદૂર બંધ ન થવાનું. એ તાકાત છે ભારતની, અને દુનિયાએ પણ એ તાકાતને માનવી પડી છે. એટલે જ બ્રહ્મોસ માંગી રહ્યા છે આપણી પાસે. ભારત પાસે ટેકનોલોજી વિકસાવવાની તાકાત છે. જે અનેક પ્રકારના શસ્ત્રો જે બહારથી આપણે મંગાવતા હતા, હવે આપણે બહાર આપવાની તૈયારીમાં આવી ગયા છીએ. એ તાકાત છે ભારતના નાગરિકોની. આપણે જે રીતે સરકારને બેસાડી છે, તો સરકાર પણ એવી સમર્થ છે જે આ બધું કરી શકે એમ છે. આપણે માત્ર ટેકો આપવાની જરૂર છે. જે પણ આપણે નાના નાના સંકલ્પો લઈને આપણે શું સહયોગ કરી શકીએ, બહુ ક્યાંય બહાર જવાની જરૂર નથી. આપણે એવું નક્કી કરી કે હું વ્યસન નહીં કરું, આ પણ એક મોટો સરકારને બહુ મોટો સહયોગ છે. આવા નાના નાના સંકલ્પો આપણા માટે કરતા થઈ જઈએ તો પણ દેશમાં બહુ મોટું પરિવર્તન આવશે. અને વિકસિત ભારત 2047માં નહીં, 2037માં બની જશે. એવા પ્રકારની તૈયારી ભારત સરકારની છે. આપણે સહયોગ આપવાની આવશ્યકતા છે. 11માંથી ચોથી ઇકોનોમી આપણે બની ચૂક્યા છીએ, ત્રીજી બનવાની તૈયારીમાં છે. લોકોને ડર એનો જ છે કે આ ભારત હંફાઈ દેશે અમને બધા ધીમે ધીમે કરીને. કેમ? કારણ કે ભારતના નાગરિકો એક ડગલું ચાલે છે, 140 કરોડ ડગલા ચાલે છે. આ સામાન્ય વસ્તુ નથી. તાકાત આપણા બધાની તાકાત છે. એટલે આપણે જેટલા સમર્થ હોઈશું તો યુદ્ધ પણ બંધ થશે, અને આપણે કહીશું એ પ્રમાણે દુનિયા ચાલશે. એના માટે આપણે તાકાત બનવાની જરૂર છે. આપણે શક્તિશાળી બનવાની જરૂર છે. આપણે કોઈની સામે યુદ્ધ કરવા નથી જવું, પણ કોઈ આપણી સામે આંખ ઊંચી કરીને જોવે ને, એ ચલાવી પણ નથી લેવું. એ પ્રકારની શક્તિશાળી આપણે બનવું છે. એટલા માટે મારું સૌને કહેવું છે કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં જે પણ કંઈ કરી શકીએ, માત્ર એક સૂત્ર રાખીએ જરૂર કે હું જે પણ કંઈ કરીશ એમાં દેશ પ્રથમ રહેશે, બાકી બધું મારું એની પાછળ રહેશે. આટલું આપણું કરીએ તો બહુ મોટું પરિવર્તન આવી શકે છે. આ સમયની માંગ છે. જો દુનિયાની અંદર આ બંધ કરવું હોય યુદ્ધ, તો પણ આપણે આટલું જ કરવાનું છે. દેશ પ્રથમ આવું રાખીને આપણે ચાલીશું તો જરૂર આપણે મુકામ સુધી પહોંચી શકીશું. એ જ વાત સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. Thank you so much, sir. Now I would request Dr. Hireni Mankodi ma'am to kindly felicitate our chief guest, Dr. Jaiprakash. Jaiprakash. Thank you, ma'am. I would request Dr. Satish Kumar K. Joshi from the Institute of Engineer to kindly felicitate our keynote speaker, Shri Dinesh Patel ji. Now Dinesh ji will going to present a book to Dr. Jaiprakash. All army men here to join. મેં બે બુક લખી છે સ્ટુડન્ટ માટે ખાસ કરીને આજે પ્રેઝન્ટ કરું છું. ફેલ ટુ વિન.
आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।